بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ ہر گھر میں روٹی پکتی ہے اور روٹی پکنے سے پہلے آٹا گوندا جاتا ہے۔ بہت کم گھر ایسے ہوں گے جہاں آٹا لیا، اس میں پانی ڈالا، اس کو گوندا، پیڑا بنایا اور روٹی بنا دی۔ ایسی روٹی کبھی اچھی نہیں بنتی۔ آپ کا خیال ہے یہ نرم بنے گی، یہ پھول جائے گی، یہ سافٹ اور گداز ہوگی؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک بار میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے بیجی کہتے تھے کہ بیجی یہ جو فوراً آٹا گوندھ کے روٹی پکاتے ہیں اسے اکڑ کیوں جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، انسانی رشتے ہوں، تعلق ہوں یا آٹا ہو، ان سب کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، پھر ہی اس میں سے وہ نرمی اور جس طور پہ آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ رزلٹ نکل پاتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، پر وہ انتظار اور وہ جو وقت ہے جو رشتوں کو مستحکم ہونے کے لیے دینا چاہیے وہ ہم نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کسی وزیر اعظم کی بیٹی کا گھر ہو، کسی وزیر کی بیٹی کا گھر ہو، کسی افسر اعلیٰ، کسی بزنس مین، کسی عام آدمی، یعنی یوں سمجھیں کہ زندگی کے جس طبقے کا بھی آپ ذکر کر لیجئے، جو ان کی بیٹیاں جتنے لاڈ سے، جتنے چاؤ سے، جتنی محبت سے، جتنے رکھ رکھاؤ سے اور جتنے بڑے پروٹوکول سے بیاہ کے آگے جاتی ہیں، تو محدود چند ہوں گی جن کو آگے محبت کرنے والے رشتے ملتے ہیں یا اپنے رشتوں کو سنبھالنے والے لوگ ملتے ہیں۔ اگر انہیں ملتے ہیں تو کوئی ایسی ساسیں اور ایسی نندیں کہ جن میں انسانوں کی روحیں تو بہرحال نہیں ہوتی، یہ کسی چنگیز خان کا گڑتی انہوں نے لی ہوتی ہے اور یہ صرف 1 یا 2 دن نکالتی ہیں، اس کے بعد یہ اپنی اصل جون میں آ جاتی ہیں۔ اور ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آنے والی بچی کو اذیت دینا، اس کو عذاب دینا، اس سے الرغم کہ وہ ان کی اپنی ہے یا غیر ہے، دونوں صورتوں میں ان کے ذمے ایک ہی کام ہے۔ انہوں نے اپنے ذمے ایک ہی کام لیا ہے کہ گالیاں کھانی ہیں۔ انہوں نے اپنے ذمے ایک ہی کام کو ترجیح اول کے طور پہ لیا ہے کہ بد دعائیں لینی ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب والد سخت ہوتا ہے تو جو ان کے بچے ہیں اس کو موت کی دعا دیتے ہیں۔ والدین کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت سافٹ اور کائنڈ ہونا چاہیے۔ یہاں تو آپ ایک نئی آنے والی مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرنے جا رہے ہیں۔ اس ہفتے 3-4 کیسز ایسے مجھ تک پہنچے کہ لٹرلی جنہوں نے دل کو دکھ سے بھر دیا۔ ایک بچی نے کہا کہ میں جس گھر میں بیاہ کے گئی وہ ہمارے ابا کے اور اماں کے قریبی جاننے والوں کا تھا، اور جس فلور پہ مجھے کمرہ ملا وہ دوسرا تھا، اس کے بعد تیسرا تھا، پہ چھت تھی۔ تو جو چھت پہ جانے والی چیز ہوتی تھی، لائک کپڑے، اپنے اپنے دھو کے بالٹیوں کو سیڑھیوں میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ آتا جاتا جو سیڑھیوں پہ جائے وہ بالٹی کو اٹھاتا جائے اور تیسری منزل پہ جا کے تار لگی تو اس پہ ڈال دے۔ اس نے کہا کہ چند ہفتے یہ معمول میں نے بھی دیکھا آتے جاتے کہ وہ میری جٹھانی ہوتی تھی، میری نند ہوتی تھی، میری ساس بھی، جس نے اپنے کپڑے دھوئے تو آ کے سیڑھیوں پہ رکھ دیے، تو جو اوپر جاتا وہ بلا تخصیص لیتا جاتا۔ اور پھر ایک روز اس بہو نے، اس پیاری سی بچی نے جس کی عمر کل 22 سال تھی اور اس گھر میں وہ بڑے ہی لاڈ سے بیاہ کے گئی تھی، اس نے اپنے کپڑے دھوئے اور وہاں لا کے بالٹی رکھ دی کہ جو اوپر جاتا جائے گا وہ اسے لے جائے گا۔ اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہی سیڑھیوں کے پاس کچہری لگی ہوئی تھی جہاں اس کی ساس بھی کھڑی تھی، جہاں اس کی نندیں بھی کھڑی تھی 2 عدد، اور اس کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کس نے بالٹی رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رکھی ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے یہ بالٹی رکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے اتنے دنوں سے یہی دیکھ رہی تھی کہ جو اوپر آتے جاتے تمہارے ہم باپ کے ملازم ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی نند نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماں نے یوں اشارہ کیا اور اس نے اپنا جوتا اتارا، پھر چھوٹی نند نے اپنا جوتا اتارا اور دونوں نے اس بہو کے سر پہ اور گالوں پہ اور کندھوں پہ جہاں وہ کچھ دیر تو بالکل اسے کہتے ہیں نا آپ ہکا بکا رہ جانا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ ایم اے پاس لڑکی، شہر سے پڑھی لکھی، عزت دار گھرانے کی بیٹی، جس بات پہ وہ وہاں مار کھا رہی تھی، آپ سوچئے اسے تو چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں ملا، اور یہ مار پلینڈ مار تھی، صرف وہ بلی مارنے والی مار۔ آپ سوچئے کہ جب آپ آنے والی
बहू के साथ ये सलूक प्लान करते हैं तो आपके अंदर कोई इंसानियत की रमक रह जाती है। आप किसी बड़ी से बड़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखती हो, आप किसी आला ख़ानदान के माँ और बाप की बेटी हो, मुझे तो दोनों से इनकार है। यानी जिसको बुनियादी इंसानी शर्फ उसके अंदर नहीं है, रिश्तों का पास नहीं है, आने वाली बेटी का एहसास नहीं है, वो दुश्मन भी आके लाए थे या किसी दुश्मन के कबीले से लड़की ख़रीद के लाए थे। ये जो आपने सलूक उसके साथ किया, ये हैवानों वाला सलूक भी शायद हम हैवानों के साथ भी नहीं करते। हम अपने जानवरों के साथ भी उनके जब नए आते हैं उनको प्यार करते हैं, उनकी कमर पे थापी देते हैं, उन्हें खरेरा करते हैं और उनके साथ उन्हें कोई ना कोई खिलाते हैं, पिलाते हैं ताकि वो हमारा हिस्सा बन जाए। आप सोचिए कि कभी आपने अगर कौवों को देखा हो, किसी कौवे की बेटी को या कौवे के बेटे को आप मार के दिखाएं, गुलेला मारें या उसको मार के नीचे गिरा दें, जिस कौवे की नज़र पड़ जाए उसके बाद ऐसा नहीं होता कि कौवों की पूरी फ़ौज वहाँ ना आए और वो काएं काएं करके उस जुल्म पे एहतजाज ना करें, बल्कि आते जाते हर बंदे के सर पे वो ठूंगे लग मारेंगी। और उन्हें जब ये ख़बर हो जाती है कि खुद क्रिमिनल, किसने ये गुनाह और जुर्म कमिट किया, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। तो क्या हमारे ख़ानदानों में, हमारे लोगों में कौवों जैसी गैरत भी नहीं रही कि अपनी बेटियों की जब हम कहानियाँ सुनते हैं, किस्से सुनते हैं और बड़े बड़े ख़ानदानों के बच्चियों के साथ जो होता देखते हैं तो उसके बाद हम चुप साध लेते हैं? क्या सोच के चुप साधते हैं? वो बच्ची आपने बेच दी है, वो बच्ची बेइज्जत होने के लिए आपने 400 लोगों की मौजूदगी में उसको निकाहा था कि जहां वो जाए। अब उसकी रोज़ जब एक दफ़ा आपने बेइज्जती करवा ली और उस पर आपने एहतजाज नहीं किया, कौवों जैसा ना सही, इंसानों जैसा ही सही, पूरा डेलीगेशन बन के आपको वहाँ जाना चाहिए और पर्या बुलानी चाहिए और उनको इतना बेइज्जत और रुस्वा करना चाहिए कि तुम्हें अगर तमीज़ नहीं है, तुम्हें तहजीब नहीं है बेटियों को रखने की, बेटियों को पालने की, बेटियों का मान उठाने की, उनका सम्मान करने की, तो तुम ब्याह की क्यों लाते हो? किसी जंगल में जाके रहो, तुम जंगली लोग हो, इंसानों के बीच में रहने का न तुम्हें हक मिलना चाहिए न तुम्हें एजाज़ मिलना चाहिए। हमने हर काम पे बेतुके कानून बनाए हुए हैं ऐसी जालिम औरतों के लिए, चाहे वो सास हो, चाहे वो नंद हो, जिस भी एज की हो, जो अपनी हद से निकले उस पर सारी दफ़ा लगनी चाहिए। उनको थानों में बंद भी करना चाहिए, उनका रिमांड भी लेना चाहिए। हम बेगना 70-80 साल पुराने साफ़ी और उस्तादा को हम हथकड़ियाँ लगा देते हैं जिनका कसूर भी नहीं होता। ये जालिम जो कसूरवार हैं इनको हथकड़ियाँ लगानी चाहिए। 2-4 को लगा के देखिए, बाकियों को कान हो जाएंगे। यूरोप में जाके क्यों नहीं लोग अपनी बहू को थप्पड़ मारते, क्यों नहीं उनको रुलाते? क्योंकि एक फ़ोन करने पर पुलिस भागी आती है और साथ मेक श्योर भी करती है एक फ़ोन के बाद पुलिस का एक बंदा आके वहाँ सिर्फ पूछ जाया करे कि दोबारा तो कोई वाक़या नहीं हुआ, और दोबारा अगर हो, याद रखिएगा, अगर हम अपने सोसाइटी का, अपनी नॉर्म्स का, अपनी रवायत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये शहर, ये गांव, ये घर, इनको जंगल बनने देर नहीं लगेगी। जंगल में जंगली जानवर रहते, इंसान नहीं रहते, और जंगली जानवरों की कोई हद नहीं होती, बेरहमी से एक दूसरे को चीर और फाड़ देते। ये इस बेटी को जो आपने पाला, 22, 24, 26 साल का किया, क्या इसलिए पाला कि आप उसे किसी ज़ेनी मजदूर के हवाले कर दो? ये फैमिली, ये ख़ानदान किस लिए है? इज़्ज़त देने के लिए, अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आप आके उसको यूँ फेंक जाओगे बेवकूफ़ चीज़ की तरह, तो फिर ये 22-22 साल से जो लड़कियाँ यहाँ बड़ी तड़पती रहती हैं कि अपने माँ बाप को फिर बद्दुआएँ भी देती हैं, फिर उनको बुरा भला भी कहती हैं कि किन जानवरों के बीच हमको फेंक गए हैं। मैं जब आपसे ये कहता हूँ तो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी इल्तिजा से कहता हूँ कि अगर रब ने आपको ये रहमत दे दी है, रब ने आप पे ये करम कर दिया है कि बेटियाँ दे दी, अब उनको पढ़ा भी दिया, उनको 22-24 साल का भी कर दिया, तो अब इतनी शफ़क़त तो फरमाएं कि जिस घर में दें किसी ज़िद और अना की बुनियाद पे नहीं, किसी अहमकाना रवायत की बुनियाद पे नहीं, उस बच्ची के साथ कम से कम उसको एतबार तो करें, कम से कम उसकी सास को चेक करें, उसकी नंदों को। जिस घर में बेवा
या कोई मुतल्लका होती है नंद, प्लीज़ उन घर को ख़ास तौर पे चेक किया करें। वो नंद उस घर में सिर्फ आग सुलगाती है, सिर्फ साजिशें करती है। एक सास तो असली होती है, ये असली सास की भी माँ होती है, जो किसी पल चैन नहीं लेने देती। उसे खाने पे एतराज़ होगा, उसे पीने पे एतराज़ होगा, उसे उठने पे, बैठने पे, सोने पे, इवन वो सारा दिन अपने पास बिठाए रखेंगे। ऐसे घरों को भी मैं जानता हूँ कि जहाँ जेठानियाँ अलग जुल्म करती हैं, नंदें अलग जालिम साबित होती हैं, और सासें इन सब पे महाज सास किस्म की होती हैं। ये सारी बैठ के दोपहरों को सिर्फ उन बच्चियों को जलील करने के लिए, रुस्वा करने के लिए और उनको ख्वार करने के लिए प्लानिंग करते हैं। और आप उस जंगली जानवरों के बीच में अपनी बेटियों को, उन मासूम बच्चियों को इन दरिंदों के चीरने फाड़ने के लिए छोड़ देते हैं और उनकी खबर भी नहीं लेते। उन्हें कहते हैं कि मरी ही वापस आना, ज़िंदा वापस ना आना। जब उस पर यह जुल्म होता है, वो रो के कहाँ जाए, वो किसको बयान करे, और आप उसकी सुनने को भी तैयार नहीं होते। ये कैसे रिश्तेदारी है? ये किन जालिम रिश्तेदारों के साथ अपनी बच्चियों को ब्याहते हैं और फिर उनको उनके जुल्म का निशाना। क्या आपने इसलिए पाली हैं कि लोग इन पे अपने जुल्म के हाथ रवा करें, या आप इसलिए पालते हैं कि इनको हर तरह से बदतमीज़ी सहनी पड़े, और फिर इवन जब प्रेग्नेंट हों तो उनके बच्चे भी ज़ाया हों, इसलिए कि उस दौरान भी ना उनको आराम करने को मिले, ना उनको प्रॉपर खाने को मिले। अपने घर आने का कहें तो आप भी मना करो, और वो भी मना करें, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ से? सो वो सासें, वो नंदें जिनकी रूहें चंगेज़ खां की नस्ल में से हैं और वो सारी पाकिस्तान में रहती हैं, ऐ प्यारे लोगों, प्लीज़ अपनी बेटियों पे रहम करो। उनको ब्याहने की जब आपको बहुत जल्दी होती है तो सिर्फ वहाँ का घर ना देखा करो, वहाँ की दौलत और वहाँ के मुरब्बे ना देखा करो, उस घर में बसने वाली उस जन्नती मखलूक का भी ख्याल किया करो, जो आपकी बच्ची को तिल तिल मार देती हैं, पल पल मारती हैं, और बिलाखिर वो ज़हनी माजूर होके नफ्सियाती मरीज़ बन के वापस आपके घर आती हैं। फिर वो हफ्तों घरों में, कमरों में पड़ी रहती हैं, उठने के काबिल भी नहीं होती हैं, और फिर आप मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारी बेटी खाली आँखों से छत को देखती रहती है, उसकी दोनों आँखों से टप टप आंसू गिरते हैं। अब आपको आंसू भी वो गिरते बुरे लगते हैं, छत की तरफ देखना भी बुरा लगता है, उसका सांस लेना भी बुरा लगता है। अब वो आपको पहचानने से इनकार कर दे तो आपकी ज़िंदगी का क्या बने? ये ज़िंदगी आपने इसलिए तो डिज़ाइन नहीं की थी कि इसे जंगल बना दें। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जंगली दरिंदों के हवाले न करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।